Hello, I am aspirants. Welcome to Supergrads. My name is Vrinda, and today this session is specially dedicated to all those of you जो पूरी मेहनत के साथ पूरी डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं IIM इंदौर आने के लिए. Now, पिछले कुछ सेशंस में हमने बात करी थी the relevance of the vulnerability section, the approach to deal with the vulnerability section, and a lot of other important things that probably helped you deal with this section better. Now, आज का सेशन डेडिकेटेड है उस छोटे से डर को एड्रेस करने के लिए जो at various levels इस सेक्शन को थोड़ा सा फॉर्मिडेबल बनाता है. But then we'll not just talk about that डर, we will also talk about the ways to combat the problem, the challenge, and so that you can overcome the challenge and come to IIM Indore. So stick till the end because a lot of valuable information will be shared during the session. Now let's understand the problem statement first of all. क्या चीज वर्बल एबिलिटी सेक्शन को फॉर्मिडेबल या चैलेंजिंग बनाती है? So let's divide this in at two levels. एक हम बात करेंगे सरफेस लेवल पे एंड दूसरी बात हम करेंगे स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे. So let's just begin. So at the surface level, right from the cutoff to the number of questions versus the test duration to the position of the verbal ability section in the paper is what I believe makes it a bit challenging at your level. So let's understand this how, let's understand why. तो जहाँ 2020 के आसपास के अराउंड ये कट ऑफ जो है वर्बल एबिलिटी सेक्शन का रेंज किया करता था 68 टू 70 के अराउंड 23 आते आते टच कर गया 125. So the cutoff, which I would say is always consistently on the rise, is one problem that a lot of us face. And I agree, it's fair enough. होगा. कट ऑफ अगर हर साल बढ़ता चला जाएगा तो थोड़ा सा डर तो लगेगा. Then you get only 40 minutes to deal with 45 questions in the verbability section. Okay, understood? Pretty challenging. Then the position of the paper. Now, as you all understand, कि IPMAT Indore is essentially a sectional test. तो तीन sections होते हैं, QA, SA, QA, MCQ, and verbal section. So you have to deal with QA, SA, and MCQ first, and then you come to the verbal section. Now, a student might say, ma'am, I may not be as attentive or as alert. I may even feel low on energy by the time I reach the last aspect or last part of the verbal ability section. Understandable problem hai. Now that's not all. I believe at the structural level there are some more challenges. For example, vocab. मैम कितने words पढ़ लूँ? मॉक में कुछ नया आ जाता है. मैम कितनी रीडिंग कर लो? जहाँ पहला सेकंड पैराग्राफ पढ़ा फर्स्ट वाला दिमाग से निकल जाता है. पैरा जम्बल्स मैम टीटा टाइप है, आंसर टाइप करना पड़ता है, टाइम कंस्ट्रेंट है और नेगेटिव मार्किंग है. पैरा कंप्लीशन मैम द ऑप्शंस आर सो क्लोज. दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं लेकिन दो इतने क्लोज होते हैं दैट आई जनरली एंड अप मार्किंग द रॉन्ग आंसर चॉइस. मैम बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या करें? वेल, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं होता. So, if at all you want to do well in the verbal ability section of IPMAT Indore entrance test, you need to be a broad problem solver. Let's understand how to combat the problems and how to do well in the paper, how to improve our preparation and pave our way to our favorite college. ये सब हमारे हाथ में है. It's all about the right approach. Now see, एक one of the problem statements से start करते हैं which was at the surface level, that is the number of questions versus the test duration. We will be able to address a lot of other issues in this head itself. Now see, the problem थी कि test duration, at least the English section का test duration is 40 minutes and the number of questions that will be in front of you will be 45. Timer चल रहा होगा and आपको 45 questions को handle करना होगा. Now see, I've always said that in my a lot of other videos कि कोई भी entrance test सिर्फ intelligence का game कभी भी नहीं होता. These entrance tests are about the right aptitude also. See, so intelligence, of course, it is important. Logical thinking is important. लेकिन आप किसी भी challenge को handle कैसे करते हो, that is equally important. Now let's take a look at this in a slightly different manner. So let's just say if I talk about you, yes, you.
यू थिंक दैट दिस इज अ प्रॉब्लम कि मुझे 45 क्वेश्चंस को 40 मिनट्स में करना है, तो थिंक अबाउट इट। जो बच्चा ए आई आर वन सोच के चल रहा है कि मुझे तो ए आई आर वन चाहिए, ये तो प्रॉब्लम उसके लिए भी है। तो इट्स नॉट जस्ट वन स्टूडेंट, इट्स नॉट जस्ट यू। The problem is, the challenge is for everybody who will be writing this paper. Yes, agreed. So, अब जो ए आई आर वन सोच रहा है, जो कि आप भी हो सकते हो, अगर आप सही एप्टीट्यूड लेकर पेपर के बारे में सोचो, अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचो, तो कहाँ मुश्किल है, कौन रोक सकता है आपको? यू नीड टू हैव फर्स्ट द डिजायर टू ओवरकम द प्रॉब्लम, you need to have the right aptitude to overcome the problem. Then you will be able to actually do well in your preparation and in the actual paper as well. Now let's say कि ये aptitude, ये right approach है क्या? ये कहाँ से आएगा? देखो, first and foremost, we need to understand the structure of the paper. तो 45 क्वेश्चंस हैं, 40 मिनट्स में करना है, लेकिन आप अगर पिछला डेटा को भी उठा के देख लो, एंड विल टॉक फैक्चुअली हियर। अगर 125 कट ऑफ भी गया था आउट ऑफ 180 मार्क्स, सी 45 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, 180 मार्क्स वर्बल एबिलिटी सेक्शन को में आपका टोटल स्कोर है। इसमें से अगर 125 कट ऑफ गया था, डिवाइड दिस बाय 4, यू हैड टू डू अप्रोक्सीमेटली 32 क्वेश्चंस करेक्टली। तो 45 क्वेश्चन सही करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम 32 राइट क्वेश्चंस भी करते विद नो रॉन्ग क्वेश्चंस, तो भी हम सेफ जोन में आ जाते। नाउ लेट्स जस्ट से इस साल कट ऑफ थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, नीचे नहीं जाता, ऊपर ही जाता है। तो अगर मैं 140 टारगेट करूं कि मुझे 140 स्कोर चाहिए सो दैट मैं एक सेफ जोन में आऊं, तो 140 राइट क्वेश्चंस का मतलब 140 डिवाइडेड बाय 4, अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस। तो अगर आप आउट ऑफ 45 35 क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करते हो विद नो रॉन्ग क्वेश्चंस, तो भी आप सेफ जोन में हो। लेट्स जस्ट से दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, मैम 2-3 क्वेश्चंस तो गलत हो ही जाएंगे। तो इस केस में लेट्स जस्ट से 38 राइट क्वेश्चंस, 38 क्वेश्चंस विथ 90% एक्यूरेसी still gives you, leads you to the safe zone। तो आपका गुड स्कोर भी निकल जाएगा, आपका कट ऑफ भी निकल जाएगा। अब देखो, 45 क्वेश्चंस में से मैं टारगेट करूं कि मुझे 38 या 39 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें मैंने स्कोप रखा है कि दो एक क्वेश्चंस मेरे गलत हो सकते हैं, आई एम ओनली ह्यूमन, पॉसिबल है, हो सकता है। दैट मीन्स आई स्टिल कैन नॉट अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस। तो व्हेन द पेपर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होगे, अगर आप सही अप्रोच लेके चलो कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस करने हैं और ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकने का ऑप्शन मेरे पास है, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो आप पेपर, जो क्वेश्चंस आप करोगे, आप उनके साथ जस्टिस कर सकते हो, एंड यू विल गेट क्लोज टू मोर देन अ मिनट पर क्वेश्चन। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 1 मिनट नहीं लगता, जैसे ग्रामर के क्वेश्चंस। टू सर्टन एक्सटेंट अ पार्ट ऑफ वोकेबलरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं दैट ईदर यू विल नो द आंसर और यू वोंट, यू वोंट हैव टू सिट देयर, स्क्रैच योर हेड एंड स्पेंड मोर देन अ मिनट पर क्वेश्चन। तो देयर आर सेक्शंस ऑफ द पेपर जो बहुत डुएबल होता है, जहां पर अंडर 1 मिनट हम आंसर मार्क कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सो कॉन्सेप्चुअल दैट ईदर यू नो इट और यू डोंट। वहां बैठ के आप सोच नहीं पाओगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दैट मीन्स देयर विल बी मोर टाइम टू डील विद अदर more comprehensive sections of the paper. That is what I mean when I say the right approach. So, structure of the paper क्या है? There will be reading comprehension passage based questions. There will be grammar based questions. There will be vocab based questions, parajumble, paracompletion. You don't have to attempt all 45 questions. एंड ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए या कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अगर आप सही ढंग से हैंडल करोगे किसी भी चीज को, तो आप बहुत अच्छा किसी भी पेपर को कर सकते हो। See, बहुत अच्छी प्रैक्टिस अगर हम करते हैं, जैसे इस वक्त जब हमारे पास ऑलमोस्ट 3.5 से 4 महीने बचे हैं बिफोर द एक्चुअल पेपर, आप अपनी रीडिंग को, अपनी वोकैब को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की प्रैक्टिस को, ग्रामर की प्रैक्टिस को बहुत रोबस्ट रखो। दिन का 3 से 4 घंटा वर्बल एबिलिटी सेक्शन को दो, और इस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, बिकॉज द एंटायर पेपर इज ऑनलाइन, एंड हमारा ओरिएंटेशन होना चाहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ो और आपको वो समझ में आए। ग्रामर के रूल्स पढ़ो, वोकैब को प्रैक्टिस करो, बहुत रिवीजन करो, बहुत अच्छा रिवीजन करो, एंड समझने के लिए पढ़ो।
किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम समझ के अगर अगर हम आगे चलेंगे तो हम कभी भी सोल्यूशन नहीं आएगा, कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। टेक एवरीथिंग एज अ चैलेंज, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू लर्निंग सो मच इन द प्रोसेस। आप सीख रहे हो और आप बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आप पॉजिटिव और राइट एटीट्यूड से आगे चलोगे। मगर उसके लिए लगती है बहुत सारी प्रैक्टिस। वो कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आपको अगर कट ऑफ निकालना है तो उसके लिए आपका सिलेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। सिलेक्शन स्ट्रांग होगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होगी और आपको श्योरिटी होगी कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 6 क्वेश्चन होते हैं लेकिन मेरे 5 हमेशा सही जाते हैं बिकॉज मेरी अप्रोच सही है। आई नो हाउ टू हैंडल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। फॉर दैट मैटर वोकेबलरी में हमें पता है कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। सो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस, देयर विल बी क्वेश्चंस, देयर आर questions around phrasal verbs will be expected. So why don't, when we still have 4 months with us, तो हम क्यों नहीं इन sections को strong कर लेते so that whenever you come across these questions, all you have to do is just put a tick, just click it and move to the next question, save a lot of time. The same is applicable for grammar also. पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एरर्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे अंडरलाइन पार्ट होता है और जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें एरनियस पार्ट में वेरिएशन होता है। तो दे विल बी वेरी गुड ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू द ग्रामर सेक्शन एज वेल। वर्क ऑन दोज। पुराने साल के पेपर्स को सॉल्व करो। 20 का पेपर उठाओ, 21 का पेपर उठाओ, 22 23 का पेपर उठाओ, उन्हें सॉल्व करो, ऑनलाइन करो। कीप प्रैक्टिसिंग। यही तो ट्रिक है, इसी से तो होगा। देर इज नो शॉर्टकट। जो बच्चे AIR अंडर 10 या AIR अंडर 100 लेकर आते हैं उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क है सिर्फ प्रैक्टिस का, फर्क है सिर्फ एप्टीट्यूड का। अगर आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी अपना राइट एप्टीट्यूड रखो, आप तैयार हो चैलेंजेस को फेस करने के लिए, आप तैयार हो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाउ द पोजीशन ऑफ द इंग्लिश सेक्शन। नाउ सी अगेन, it's all related. It's all related at surface level, at structural level. Now see, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, आपने वोकैब पे काम किया, आपने रीडिंग करी ऑनलाइन, आपने पैसेजेस सॉल्व करे, आपने अप्रोच पे काम किया, आपने पैरा जम्बल्स पे प्रैक्टिस करा, आपने पैरा कंप्लीशन ग्रामर पे काम करा। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट इनफ मॉक्स। अगर आप मॉक लिखते हो, नाउ मॉक विल बी द रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल पेपर, तो वो उतने ही ड्यूरेशन का होगा, वो उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड होगा जैसे एक्चुअल पेपर होता है। तो पहले क्वांट ही होगा, क्वांट ऐसे, क्वांट MCQ, एंड देन यू विल कम टू द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। So if you write at least one mock, or maybe if you think that you're ready, start writing 2 mocks a week. उससे क्या होगा, आपका स्टैमिना बिल्ड होगा। आप जितने एक्टिव और अलर्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हो उतने ही एक्टिव और अलर्ट आप लास्ट क्वेश्चन तक आते आते रहोगे। ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती, ये चीजें प्रैक्टिस से होती हैं। ये चीजें आती हैं जब आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो, जील के साथ काम करते हो, डिजायर के साथ काम करते हो और अपना बेस्ट देते हो। सो प्रैक्टिस अलॉट, राइट इनफ मॉक्स, दोनों चीजें डेवलप होंगी, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको सिलेक्शन समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, ग्रामर कितनी जल्दी हो सकता है, वोकैब कितनी आसानी से हैंडल हो सकता है, RC को कितना टाइम देना चाहिए। धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप एक बहुत अच्छा पैटर्न बना लेगा। एंड जहां ये हो जाएगा उसको फ्रीज करो, उसी को प्रैक्टिस करो, उसी के साथ आगे बढ़ो। सी लाइक आई सेड, यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट ऑल 45 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट फ्यूअर क्वेश्चंस, 37 38 40 क्वेश्चंस कर लो। अभी भी 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, मगर ये क्वेश्चन जो आप करते हो इसमें एक्यूरेसी चाहिए। सी, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के लिए थोड़ा सा एप्टीट्यूड, थोड़ा सा राइट अप्रोच is as important as having the right intelligence or the logical thinking to crack the paper. Now, having said that, I come to the end of the session, and all I have to say here at this juncture is thodi progress, a little progress each day adds up to big results. And I'm sure you will do well if you develop the right aptitude and the approach. Thank you.